Hi student, my name is Jatin Chavan and hope you all are good. Today I am starting with a subject called current affair. So as usual, your first chapter is over and I will be starting from chapter 2. Chapter 2 name is polity and governance. So starting with the chapter, first of all you should know what is title and what is the definition of title. So what is polity and what is governance, its meanings and its definition. So polity is nothing but process of government. So hope you all can see here polity. Polity is a process of government. Polity is a process of government. So process of government, for example, you are in first year, so you will be giving semester 1 and semester 2 exam. Then you will be promoted to second year, SYBML. You will be giving third semester and fourth semester exam. Then you will be promoted to TY. So if you have to complete a degree, you should follow a process. So same thing applies with our Indian polity. So polity is a process. It defines what is process of our government. It means what are legislation, what is executive, what is judiciary, their process. So our Indian polity process, it is known as a polity. Now you have understand what is polity. Second word is a governance. So now what is governance? So governance is nothing but to govern a state. You can see all here. Governance is to govern a state. Means what are bodies? Which are bodies, department within a polity, which are a bodies, department who govern particular department, particular ministry. For example, finance ministry, they look after the financial condition of our India. Defense ministry, who look after the defense military. So governance means the body which governs our country, and polity means what are the process of our government. So hope you all have understand polity and governance. I will show you once again. This is a polity process of government, and governance is nothing but govern of a state, how to govern a state. Okay, so you have understand the chapter topic polity and governance. So our India is a largest democracy. So now what is democracy? Actually जो बेसिक जो मेरी हैबिट है, मैं हर एक चीज़ को डिफाइन करता हूँ. हर एक टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है. हर एक वर्ड को समझना बहुत जरूरी है. सो इंडिया इज ए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. सो नाउ व्हाट इज डेमोक्रेसी? सो डेमोक्रेसी इज rule by people. Democracy is rule of people. The government of the country is elected by the people. It is known as democracy. So what is monarchy? Monarchy means the country head is not elected by the people. It is hierarchically follow. मीन्स राजा का लड़का जो होगा वही देश का राजा बनेगा, उसको कहते हैं मोनार्की. बट डेमोक्रेसी इसे कहते हैं कि जो हमारे जनता है वो देश के राजा को चुनती है. सो इट इज नोन एज डेमोक्रेसी. सो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या है? ए सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट of the country is elected by the
people. So hope you all have understand what is democracy. So India is a largest democracy in the world. Okay, and India has largest written constitution of the world. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित रूप में सबसे ज़्यादा पन्नों का और सबसे ज़्यादा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का. ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टैंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस. व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज ए रूल बाय द पीपल. देयर इज ए फेमस कोट दैट डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, टू द पीपल. ये फेमस कोट है. ओके, मतलब जनता के लिए गवर्नमेंट होती है, जनता खुद चुनती है अपनी सरकार. इसे कहते हैं डेमोक्रेसी. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज पॉलिटी. सो व्हाट आर द प्रोसेस of our Indian polity? So first of all, I would like to tell you that in every republic country, every democratic country, there is a parliament. Okay, in democratic country there is a parliament. So in parliament there is a two house which is known as bicameral. Understand it. There are two form of parliament. One is unicameral and second is bicameral. So unicameral means there is only one house, and bicameral means there are two house. Okay, so there are many countries which are having only one house, but in India we are a bicameral. We have two house. One is known as upper house and second is known as lower house. In Hindi, lower house is known as Lok Sabha and upper house is known as Rajya Sabha. So in Lok Sabha, elected members by the people, they sit there. Okay, जो जनता के द्वारा चुन के जाते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं. और राज्यसभा द मेंबर्स दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय देयर पार्टीज. दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, दे आर इलेक्टेड बाय देयर पार्टीज who sit in Rajya Sabha. Okay, you have understand there are two house. It is known as bicameral. Okay, our parliament is bicameral. And there is another thing. If you will read Indian Constitution, so there is clearly written that India is a federal state but unitary in nature. India is a federal state but unitary in nature. So what is federal and what is unitary? So federal means there are many countries who is federal and there are many countries who is unitary. So federal means, for example, USA is a federal. So federal means there are many states in USA. So states are independent. Central has no control over state. State can act there independently. So Australia is a federal. So you have understand what is federal. Federal means the state have independent powers. Now we have to understand what is unitary. Unitary means state does not have any power. Central has all the powers. All the laws will be amendment and enacted or made by the central. State does not have any power. But India is not federal and India is not a unitary. India is a combination of both. That's why our constitution says that India, our state are federal but unitary in nature. Means
state have somewhat independent power, but we all are unitary. The 28 states are united of India. There are some federal, there are some power given to state, but it central also has the power to control the state. Means it is unitary also and it is federal also. So hope you have understand. Okay. So what is unitary and what is federal? These are the basic term. You should know it. Okay. So now, how government of India is governed? Which are the bodies who governs the country? So government of India, there is a three major important things in our country, which is known as executive, legislature and judiciary. So three things, these are the three pillars. Our democracy and our polity is dependent on these three pillars. What are these? Executive, legislature and judiciary. So I have explained you the legislature. Two house. In our parliament there is two house, upper house and lower house, which is known as Rajya Sabha and which is known as Lok Sabha. It is known as legislature. Now we will be discussing what is executive. So there are two important things in executive, two bodies. One is permanent body and one is non-permanent body. So non-permanent body, first of all, let it go. We will understand what is executive. So majorly the laws are made by legislature. I will explain you parliament, there are two houses. So in that parliament laws are being made. अपनी जो राज्यसभा लोकसभा है, संसद जिसे संसद कहा जाता है, तो संसद में कानून बनते हैं. किसके लिए कानून बनते हैं? तो वेरियस सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फिर आम जनता के लिए कानून बनते हैं, इलेक्शन के लिए कानून बनते हैं, मिलिट्री के लिए कानून बनते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है उसमें. सो वाटर सप्लाई के लिए कानून बनते हैं, बहुत सारे. तो लेजिस्लेचर मेड ए लॉ. लेजिस्लेचर हैज़ राइट टू मेक ए लॉ. ओके. एग्जीक्यूटिव, what is executive? The whichever law is made by legislature, it is implemented by executive. Okay, now you have understand what is executive. Executive implement the law which are made by the legislature. So in executive there are two bodies, non-permanent and permanent body. So first of all we will discuss what is non-permanent body in executive. So आप सभी को पता रहेगा हमारे प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो ये जो सारे लोग होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, लोगों के द्वारा चुन के जाते हैं, उन्हें कहते हैं नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव. मतलब वो 5 साल तक रहते हैं, फिर उसके बाद सरकार बदल जाती है तो नए लोग आ जाते हैं. तो ये लोग जो होते हैं वो नॉन परमानेंट है. अच्छा, इनका रोल क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो पूरी की पूरी कंट्री को गवर्न करता है. ओके, प्राइम मिनिस्टर गवर्न ए कंट्री. एंड व्हाट मिनिस्टर्स डू? देयर इज ए कैबिनेट मिनिस्ट्री, फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री एंड एक्सेट्रा. So there are important ministers. So there उनका एक इकट्ठा ग्रुप मिलके कैबिनेट बनता है. So प्राइम मिनिस्टर does not take any of the step without aid and advice of the cabinet. तो कैबिनेट इसलिए बनाया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर को एड एंड एडवाइस दे सके. प्राइम मिनिस्टर जो है उसको एड एंड एडवाइस दे सके, इसलिए कैबिनेट बनाया जाता है. सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड. सो ये जो सारी बॉडी है जो इलेक्टेड होके जाती है उसको कहते हैं नॉन परमानेंट. 5 साल के बाद बदल जाती है. परमानेंट बॉडी कौन सी है?
एग्जीक्यूटिव के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं दो स्टेप, एक है नॉन परमानेंट बॉडी और एक है परमानेंट बॉडी। ओके, नॉन परमानेंट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये नॉन परमानेंट है, 5 साल के बाद ये लोग बदल जाते हैं। इसके बाद परमानेंट बॉडी आती है। परमानेंट बॉडी कौन सी है? सो परमानेंट बॉडी है IAS, IRS, IPS। ये जो लोग होते हैं जो एग्जाम दे के जाते हैं, ये लोग परमानेंट होते हैं। उनकी सर्विस जो होती है परमानेंट होती है, 30 ईयर्स, 20 ईयर, 25 ईयर्स। ये लोग नॉन परमानेंट नहीं होते, ये परमानेंट है। ये लोग भी गवर्न करते हैं। जो IAS होता है वो डिस्ट्रिक्ट को गवर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल हु इज IAS ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट, ही विल बी गवर्निंग होल डिस्ट्रिक्ट ऑफ थाने। ऑल द राइट्स कम्स अंडर हिज अथॉरिटी। ओके, सो ऐसे ही IPS होते हैं, पुलिस अधिकारी। ओके, तो जो IPS होते हैं वो पुलिस जितना भी डिपार्टमेंट है उन्हें वो ऑथराइज करते हैं। ओके, सो यू हैव अंडरस्टैंड एग्जीक्यूटिव। So there are 3 pillars of Indian polity, which is known as legislature, executive, and judiciary. So we have discussed legislature, 2 house, lower house and upper house. Executive, permanent body and non-permanent body. Legislature has power of making law. Executive has power to implement that law. Okay, two pillars we have discussed. Now there is a third pillar of our Indian polity. So third pillar is judiciary. So what does judiciary means and what powers does judiciary have? So judiciary has the power to resolve the conflict between executive and legislature. मतलब हमारी जो पार्लियामेंट है, अगर उसमें कोई दुविधा खड़ी हो जाती है या हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी पे कोई दुविधा हो जाती है, तो उसको रिसॉल्व करने के लिए जुडिशरी बनाया है। तो जुडिशरी की कौन सी बॉडी है सबसे बड़ी? तो उसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो पहला पावर सुप्रीम कोर्ट का है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये 2 बॉडी के कॉन्फ्लिक्ट रिसॉल्व करते हैं। और दूसरा है आम जनता का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी रिसॉल्व करने का पावर जो है वो जुडिशरी के हाथ में है। जैसे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई केस हो गया, कोई क्रिमिनल केस हो गया, तो वो सारे जो चीज़ें होती है, दो स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, नदी के विवाद को लेके या बाउंड्रीज को लेके या कोई और चीज़ को लेके, तो वो सारे जो रिसॉल्व करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट करते हैं। ओके, सो यू हैव अंडरस्टैंड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दिस आर द 3 पिलर ऑफ आवर इंडिया। सो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी मैंने आपको समझा दिया है, यूनिटरी एंड फेडरल। इंडिया इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यूनिटरी, इट इज फेडरल in nature, federal of state but unitary in nature, India. Okay, bicameral, unicameral also we have understand. Legislature, there are 2 type of legislature, bicameral and unicameral. So bicameral has 2 house, unicameral has 1 house. Okay, so all you have understand this thing. So इसी तरीके से सेंट्रल में संसद होती है, 2 हाउस होते हैं। इसी तरीके से हमारे स्टेट में भी 2 हाउस होते हैं। तो स्टेट में भी 2 हाउस होते हैं, स्टेट असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये 2 हाउस होते हैं स्टेट में भी। सेम सेंट्रल के तरीके जैसे स्टेट में भी 2 हाउस होते हैं, स्टेट असेंबली एंड लेजिस्लेचर काउंसिल। ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टैंड टिल नाउ। ओके, स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। देखो, अगर एक इंडिपेंडेंट कंट्री है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई पॉलिटिकल या एक पॉलिटी होगी। सो
वो पॉलिटी, वो प्रोसेस को चलाने के लिए गवर्नमेंट चाहिए। सो गवर्नमेंट में भी देखो दो टाइप की सिस्टम होती है, वन इज मल्टी पार्टी गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज वन पार्टी रूल। सो इंडिया इज मल्टी पार्टी, मतलब एक जो गवर्न करते हैं कंट्री को एक पार्टी वो होती है और एक होता है अपोजिशन। ओके, तो इंडिया में मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है, बट देर आर मेनी दूसरे कंट्री है जो वन पार्टी गवर्नमेंट है। फॉर एग्जाम्पल चाइना, चाइना इज वन पार्टी, देर इज नो अपोजिशन, देर इज नथिंग, नेशनल पार्टी ऑफ चाइना है और उनका एक ही उनका पार्टी होती है। ओके, सो कोई अपोजिशन वगैरह नहीं होती। तो समझो कोई इंडिपेंडेंट कंट्री है तो वो कंट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट चाहिए, तो गवर्नमेंट में पॉलिटी चाहिए, प्रोसेस चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। सो हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसे होती है, तो मैंने आपको बताया था यूनिटरी, फेडरल एंड कॉन्फिडेंटल। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी, यूनिटरी मैंने आपको समझाया, यूनिटरी माने सेंटर के पास, स्टेट और सेंटर दो चीज़ होती है कोई भी कंट्री के अंदर। तो सेंटर के पास सारे के सारा पावर हो, स्टेट डज नॉट हैव एनी पावर, सेंट्रल हैज ऑल द पावर टू गवर्न, इट इज नोन एज यूनिटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम। फेडरल, ये हम रिवीजन कर रहे हैं, आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आगे के जो सारी चीज़ें हैं वो इन्हीं के बेस पे होती है। अगर यू विल नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक सिस्टम, देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल थिंग्स ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस। सो फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन मीन्स कि स्टेट इंडिपेंडेंट होते हैं। यूनिटरी में सेंटर स्टेट को चलाता है, बट फेडरेशन में ऐसा नहीं, फेडरेशन में स्टेट के पास पावर होता है कुछ। और कॉन्फिडेंटल माने क्या होता है? अब यूनिटरी जो होती है वो सेंटर चलाती है, कॉन्फिडेंटल माने स्टेट के पास इंडिपेंडेंट पावर होते हैं। कॉन्फिडेंटल माने सेंटर के पास कोई पावर नहीं होता, स्टेट के वजह से कंट्री बनी है, पहले से स्टेट एग्जिस्ट करते थे और उन्होंने मिलके एक कंट्री बनाई है और स्टेट के पास इंडिपेंडेंट सारे के सारे पावर होते हैं, सेंट्रल डज नॉट हैव एनी पावर, कॉन्फिडेंटल कहते हैं। बट इंडिया में कौन सा सिस्टम है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इंडियन स्टेट इज ए फेडरल बट यूनिटरी इन नेचर, मतलब हम फेडरल और यूनिटरी का कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं है कि सेंटर को सारा पावर दे दिया है इंडिया में और स्टेट के पास कुछ पावर है ही नहीं, या फिर स्टेट को सारा का सारा पावर है, सेंट्रल के पास कुछ पावर दिया। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया गया है कि भाई सेंट्रल को भी कुछ पावर है और स्टेट को भी कुछ इंडिपेंडेंट पावर है, तो इसलिए इसे कहा जाता है फेडरल ऑफ स्टेट बट यूनिटरी इन नेचर। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके कौन से 3 पिलर हमने डिस्कस किए थे? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ओके, अब आप देख सकते हो लेजिस्लेचर के अंदर 2 चीज मैंने डिस्कस की थी। जो लेजिस्लेचर उसको हम संसद कहते हैं, जहां कानून बनते हैं। ओके, पार्लियामेंट, तो 2 टाइप की पार्लियामेंट होती है, बाइकैमरल एंड यूनिकैमरल। सो बाइकैमरल माने उसमें 2 हाउस होते हैं, जैसे हमारा इंडिया बाइकैमरल है, हमारे उसमें अपर हाउस लोअर हाउस है, लोकसभा राज्यसभा जहाँ कानून बनते हैं, और एक होता है यूनिकैमरल, मतलब 1 हाउस, ओनली 1 हाउस। सो कुछ कंट्री यूनिकैमरल है बट इंडिया इज ए बाइकैमरल। ओके, तो आप लेजिस्लेचर समझ गए जहाँ लॉ बनते हैं। नाउ व्हाट इज एग्जीक्यूटिव? सो एग्जीक्यूटिव इज लेजिस्लेचर के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, तो एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अमल बजाऊ, इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो उसमें मैंने 2 चीज़ आपको समझाई थी, नॉन परमानेंट एंड परमानेंट। 2 बॉडी है, नॉन परमानेंट एंड परमानेंट। सो नॉन परमानेंट में
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को समझने के लिए आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, उनके अंतर्गत एक कैबिनेट होता है, उसमें सारे के सारे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, जो भी इम्पोर्टेंट लोग होते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे नॉन परमानेंट बॉडी। नॉन परमानेंट बॉडी में जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं उसे नॉन परमानेंट बॉडी कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सारे के सारे जो होते हैं वो नॉन परमानेंट में आते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर मेन होते हैं, हेड, और उसके नीचे एक काउंसिल रहती है, एक बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर का कैबिनेट रहता है। तो प्राइम मिनिस्टर कंट्री के अंदर कोई भी चीज़, अगर कोई लॉ पास करना है या कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़, तो वो एड एंड एडवाइस काउंसिल की लेते हैं, तो उसको कहते हैं कैबिनेट। वो कैबिनेट की एड एंड एडवाइस के बिगर प्राइम मिनिस्टर कोई भी स्टेप नहीं ले सकता। सो ये बेसिक चीज़ है, आप लोगों को समझना है। ओके, सो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में नॉन परमानेंट और परमानेंट। तो परमानेंट बॉडी में क्या क्या लोग आते हैं? परमानेंट बॉडी में वो लोग आते हैं जैसे IAS, IPS, IRS। मैंने आपको पहले ही समझा दिया IAS क्या होता है, IPS क्या होता है, IRS क्या होता है। ओके, लेजिस्लेचर समझा दिया। अब जुडिशरी में आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसका जुडिशरी का काम होता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसे रिसॉल्व करते हैं। ये काम होता है जुडिशरी का। और कॉमन पीपल का कोई कॉन्फ्लिक्ट है या विद इन ए स्टेट कॉन्फ्लिक्ट है, दो स्टेट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको भी रिसॉल्व करने का काम गवर्नमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करती है। अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज आती है, बॉडी ऑफ ए कंट्री। बॉडी ऑफ ए कंट्री, कंट्री के अंदर लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, पार्लियामेंट है। ओके, ये सब हमने डिस्कस कर दिया। बट अभी जो बॉडीज है, RBI है, फिर मिनिस्ट्रीज है, बहुत सारे फार्मिंग मिनिस्ट्री है, फिर फाइनेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है। ये जो बॉडीज है, काउंसिल है, कैबिनेट है, तो ये जो बॉडीज है ये कौन से टाइप की होती है? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडी। तो टाइप ऑफ बॉडी स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वाजी जुडिशियल। ये आप देख सकते हैं 3 टाइप ऑफ बॉडी है, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वाजी जुडिशियल। 3 टाइप ऑफ बॉडी होती है। कोई भी कंट्री में 3 टाइप की बॉडी होती है। तो स्टैट्यूटरी क्या होता है? ये जो चीज़ है स्टैट्यूटरी, तो स्टैट्यूटरी जो होता है इट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी जो बॉडी होती है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे संविधान के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन से उसको कोई पावर नहीं मिल रहा। स्टैट्यूटरी बॉडी ये नॉन परमानेंटली ये लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई जाती है कुछ समय के लिए। फॉर एग्जांपल नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, जिसके टर्म बढ़ाते रहते हैं हम, 5-5 साल में उनके टर्म बढ़ते रहते हैं, इसको स्टैट्यूटरी कहते हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर नहीं देता। ये लेजिस्लेचर लॉ एक्ट बनाती है और एक बॉडी बनाती है, लेजिस्लेचर के द्वारा बॉडी बनती है, तो उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। अब रेगुलेटरी बॉडी क्या होती है? ये सेकेंड बॉडी है रेगुलेटरी बॉडी। सो रेगुलेटरी बॉडी जो होती है ना, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा पावर मिलता है, जैसे कि RBI,
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब जो हमारा शेयर मार्केट है, जो भी सारी चीज़ें वो सेबी के द्वारा कंट्रोल होती है। तो ये जो इसको रेगुलेटरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पास खुद आरबीआई खुद के पास पावर है लॉ बनाने का, उनके पास खुद अपने बॉडी को रेगुलेट करने का पावर है। जैसे कि स्टैट्यूटरी के पास पावर नहीं है, स्टैट्यूटरी को रेगुलेट लेजिस्लेचर करता है, बट रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई खुद को गवर्न करती है, वो खुद अपने कानून बनाती है, सेबी खुद अपना कानून बनाता है। इनको डायरेक्ट पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिलता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें आरबीआई के द्वारा आरबीआई का कुछ एक्ट वगैरह लिखा हुआ है, मतलब वो एक्ट में आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उनके एक्ट है। अब क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होती है? जुडिशियल आपको समझा दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वासी जुडिशियल माने ये कोर्ट नहीं है, पर ये कानून को इम्प्लीमेंट करने का या फिर ये सारे काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं है, बट इनके पास कुछ पावर रहते हैं क्वासी जुडिशियली बॉडी के पास। ये रेगुलेट कर सकते हैं लॉ, ये कुछ डिपार्टमेंट के लॉ को, कुछ डिपार्टमेंट के कॉन्फ्लिक्ट को रिसोल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 बॉडीज होती है, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल। सो होप यहाँ तक समझ में आया रहेगा। आप 2-3 बार वीडियो देखिए, मैंने लिख के भी सारी चीज़ें समझाई है। ओके, सो स्टूडेंट, बेसिक देखो, बेसिक चीज़ क्या होती है कि कोई भी कंट्री के पॉलिटी एंड गवर्नेंस को समझने के लिए ये सारे सिस्टम समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये इसी से गवर्नमेंट एंड पॉलिटी चलती है। सो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इसमें लॉज लिखे गए हैं, आर्टिकल्स लिखे गए, जैसे फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। ओके, फंडामेंटल राइट क्या क्या है? तो फंडामेंटल राइट 15 से 14 से लेके 39 तक फंडामेंटल राइट्स है। ओके, सो इसके अंदर सारे के सारे, जैसे आर्टिकल 21 में लिखा गया है राइट टू डिग्निटी टू ऑल ह्यूमन बीइंग, सब लोगों को मान सम्मान से जीने का अधिकार है। सो राइट ऑफ इक्वलिटी भी है, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये हमारे जो कंट्री का कानून है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। जिसको देख के या जिसके द्वारा रेगुलेट होता है हमारी कंट्री, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, सो मैंने समझाया इंडिया का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इन रिटर्न। ओके, और फिर हमने देखा कि इंडिया इज़ ए बिगेस्ट डेमोक्रेसी। देखो, डेमोक्रेसी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको समझाया बाइकैमरल, यूनिकैमरल, इंडिया, फेडरल, यूनिटरी, ये क्या होता है। देखो, डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल एंड मोनार्की इज फॉलोड बाय हिज एनार्की, मतलब राजा का लड़का राजा बनेगा, उसको मोनार्की कहते हैं। बट डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ पीपल, लोगों के द्वारा उनके प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं। ओके, बट इसमें जो इंडिया है, इट इज रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब देखो, 130 करोड़ पीपल है, तो सारे के सारे लोग, 130 करोड़ लोग को एक ही जगह पे बैठ के उनके राय डिसीजन नहीं ले सकते हम। एक लोगों के पास जाके उनके राय डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए रिप्रेजेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब हमारे स्टेट के जो चुनाव होते हैं उसमें हमारे जो एमएलएस खड़े होते हैं, तो हम उनको इलेक्ट करते हैं, और फिर वो एमएलएस पार्लियामेंट में बैठते हैं, और वो हमारे लिए हमारे जो उनके जो लोकल एरिया है उनके बारे में वो बात रखते हैं कि हमारे लोकल एरिया में ये लॉ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। तो हम अपनी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। सो इट इज़ ए रिप्रेजेंटेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो होप ऑल यू हैव अंडरस्टैंड. Okay, and there is any doubt, so
I will be forwarding you a link. Okay, so today it is enough. Okay.